fourth session of the series that we started, which is how to handle others' mistakes. And today is the last session on this topic, so it'll be a Q&A session. So, Sangeeta Didi has already joined us. Didi, welcome. Om Shanti, and over to you. Om Shanti, good morning, all of you, the whole family, and very warm welcome also once again to learn beautiful techniques of dealing in life. Dealing with others' mistakes is dealing with life. What is life? How do you define life with respect to mistakes? Dealing with mistakes. So, we are in the last session, so let's even go through it. Before going through, the last session and last darshan bhi milega हमको सबका. So all angels will be seen very soon, because angels can understand angels' language. So all angels can understand. I am also an angel, you are also an angel. या सभी को मेरी आवाज पहुंची नहीं है, सब angels, हम ये समझेंगे नहीं. Good. So you are confirmed that you are angels. Angels means those who are cooperative, powerful, and untouched. So they are always shown as flying, untouched by the influences of the corporeal world. So the one who will do it, not because others are doing it, not because others are saying. So that is called being uninfluenced by the corporeal world. ठीक है ना सबको? Okay, so the last session, should we go through? या डील करना आ गया सबको? डील करना आ गया सबको? Though we know to deal, but many times हमारा there are many things which we need to understand. इसलिए जैसे पहले हमने किया था कि how to deal. The first session was of dealing, and उसमें हमने अलग अलग डिस्कशन किए थे. What is maturity? तो हमने देखा था कि perfect maturity is when others are doing mistakes, but I understand that when a person hurts you and you try to understand their situation and don't hurt them back. तो बहुत बार हमारा रेगुलर फीचर है, एक गलती करता है, एक जन कुछ भी मिस्टेक करे, सपोज इन स्पाइट ऑफ योर वेरी मच guidance also, warnings also, and the child still goes there and he has to face, he falls. In spite of your teachings, in spite of your stopping, warning, guidance. Now, so he did the mistake. Now what do we do now? That time, he has hurted himself. उस समय अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, क्रोध किया, जोर से बोला, रिमाइंड किया, देखा मैंने बोला था ना, लेकिन इतना भी थॉट किया कि मैंने कितनी बार कहा, सो दैट थॉट कि मैंने कितनी बार कहा, ये हम किस एनर्जी से सोचते? एनर्जी ऑफ लव, कंपैशन, और एनर्जी ऑफ एंगर, ईगो, कौन सा है? So Samir भाई is saying on behalf of everybody.
तो एनर्जी ऑफ एंगर। तो एक ने मिस्टेक किया गिरने का, not obeying your orders, not following your guidance, and I did the mistake of becoming angry. Are we both in the same boat? चलो पार्टिसिपेटिंग करना है। Are we both in the same boat? सब एग्री नहीं कर रहे। How many yes आता है? 2 yes आया। Means out of 62 only 2 are agree. Are we in the same boat? नहीं है। एक ने मिस्टेक की, मुझे गुस्सा आया, मुझे हर्ट फील हुआ, मुझे इग्नोरेंस फील हुई। सो इट मीन्स बोथ आर डूइंग मिस्टेक्स। तो एक रॉन्ग दूसरे रॉन्ग को करेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या कहते, देखो आपको, आप कौन से कम हो, मैंने गलती की ठीक है, आप भी कौन से कम हो। therefore we many times are we have to hear these things in spite of our good guidance to others, because हम हर्ट हो जाते, हम क्रोधित हो जाते। तो इसलिए एक तो वो, और क्रोधित भी क्यों होते हैं। वन ब्रदर, नो ही was talking to us, our sister, that ना कि मैं जब भी मेडिटेशन करने बैठता हूँ ना, it's just 15 minutes and that is the time when my wife speaks to her sister on the phone और loudly, जबकि मैंने कितनी बार कह दिया कि I just get this so less time, this is the only time I get for myself, please don't disturb. But always this is the trend and I always have to shout at her, and always after meditation we yell. उसी समय when he was talking to the sister, वो नीचे बॉम्बे में ना सब्जी वाले होते हैं ना, तो सब्जी वाला जोर जोर से जा रहा था और जोर से चिल्ला रहा था। अपनी सब्जी बेचते हैं तो वो चिल्लाते हैं ना, तो बहुत जोर से। तो द सिस्टर आस्क्ड कि डज दिस साउंड डिस्टर्ब यू, ही इज येलिंग। नो, नॉट एट ऑल। बोलो व्हाई, वो अपना काम करता है, उसको बेचना है, he has to shout. बोला you don't, even if it is in the meditation you won't get disturbed. बोला no, I won't get. But why should I get mistake, why should I get disturbed? So the sister said, because the sound of the sabji wala is louder than the sound of your wife. तो आपको डिस्टर्ब होना चाहिए। नहीं, that is his, sister you are saying unreasonable things, उसका तो काम है ना सब्जी बेचना। तो सिस्टर ने कहा, when you accept you don't get disturbed, but when you expect you get disturbed, है ना। तो क्या हम जब कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं करते ना, तब हम उसकी गलती पे दूसरी गलती करते हैं। तो इसलिए वन इज दिस। सो therefore as we said कि this is called perfect maturity, and second is when a person does mistake, love me when I least deserve it, because that's the time when I really need it. अगर कोई गलती करता है, उसको हेट्रेड करना, जो हम मिस्टेक करते हैं, मतलब उसको और डाउन करना। And that time if we can love that child, love that person, accept the person, he will never forget your greatness. That is called greatness. So bigger the love, bigger the mistake, more the love.
So this is what we learned. और फिर हमने ये भी लर्न, बिकॉज जो मिस्टेक कर रहा है वो हर्ट की पोजीशन में है, और इसलिए आफ्टर मिस्टेक, because he is injured inside, there is some problem going on, therefore he does the mistake of becoming angry, not obeying you, whatever. और दूसरा, वो मिस्टेक करके फिर वो और हर्ट में है, क्योंकि अब तो रियली कर भी दिया. तो पहले थॉट में था, फीलिंग्स में था कोई हर्ट, ईगो, एंगर, अब वो एक्शन में आ गया. So now he's double hurt, and therefore there is more vacuum, there is insecure. So, and then we get hurt, and then and that person needs appreciation. Vacuum है ना, उस समय उसका self esteem lower. So therefore when one does mistake, I have to understand the picture of that soul. Inside X-ray है. तो और दूसरा, कोई मिस्टेक करता है और फिर हम उसका वर्णन करते हैं, बार बार बोलते हैं. और इसमें भी जब वो मिस्टेक कर रहा है, वो सेल्फ वर्थ उसका लो है, ही इज हर्ट, एंड देयरफॉर दैट एडिक्शन, ये गलत आदतें कहाँ शुरू होती है? समवेयर वेयर द सेल्फ एस्टीम इज वेरी लो, and the people know, the person knows that he is not accepted by his near people, near persons somewhere. इसलिए ये मिस्टेक्स होती है. एंड नेक्स्ट वी डिड अबाउट, एक जन मिस्टेक करता है और दूसरे जन उस समय क्या करना होता है. एक मिस्टेक कर रहा है मतलब उसको people, why do people make mistakes? Because जब मिस्टेक कर रहे हैं तो ऑलरेडी अब दूसरा, आई एम सीइंग दैट मिस्टेक, एंड देन आई एम स्प्रेडिंग, आई एम टेलिंग द अदर्स, आई एम टेलिंग अदर्स देयर मिस्टेक. तो मेरी एनर्जी उसके प्रति खराब हुई, उसकी भी एनर्जी मैं खराब करती हूँ. सो कलेक्टिवली ही इज गेटिंग नेगेटिव वाइब्रेशंस विथ from two people, and likewise I don't know how many people I might spread. So one is the person is doing mistake, and others, दूसरी बात है कि हम लोग सब शेयर करते हैं उस मिस्टेक. तो मतलब इतनी सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस द सोल इज गेटिंग. टू, when I get appreciation, clappings, how many of us feel very encouraged, very happy, very encouraged? Even if I tell about you कि मैंने ना आपके बारे में ना इतने लोगों से सुना कि आप रियली बहुत अच्छा गाते हो, something of your good things, how many of us feel motivated, encouraged? All of us. So similarly, if there are 50 negative feelings, 3 negative feelings, 4 about me, so how many of us will feel opposite? असर आएगा. इसलिए जितना हम स्प्रेड करेंगे किसी की मिस्टेक, मतलब मैं उसकी मिस्टेक को और बढ़ा रही हूं. आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर हिज doing that mistake again. Can we understand this? So this is the reason people go on making mistakes. और दूसरा है, हमने ये भी लर्न किया, not creating a new karma while facing the result of the old mistake. ये भी याद होगा सभी को कि कैसे मुझे अपने मिस्टेक का असर हुआ है, मुझे उसका रिजल्ट मिला है. वो टेबल का एग्जाम्पल हमने समझा था, और उस अनअवेयर दैट इट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माय एक्शन, आई जस्ट ब्लेम अदर्स
for that situation which I'm facing. So I'm doing another mistake whilst getting the result of the first one. So therefore, again, I'm preparing myself to face again more problem of the current mistake. So this is how एक विशेष साइकिल बनता जाता है, कर्म, cause, effect. So that is what I have to take into account. एक गलती किया, कुछ बीमारी आई, कोई भी रीजन बना, मेरा लॉस हुआ, something happened. Visible कोई भी causes दिख रहा है, but actually who is the cause? Yes, I want the answer from all of you. Visible cause my business loss, my relationship has become wrong because of the intervention of so and so person. So there could be so many problems I'm facing. Main the culprit is in this all the problems which I'm facing. कौन है culprit? Yeah. Me, myself. Wonderful. Very wonderful. This is called awakening. Awakening to the reality. The moment I understand I am me and myself, no one else is the cause of that mistake. I am stopping the problem to aggravate and I'm in the solution mode. Because then I'll focus on what I need to do best. ये बहुत जरूरी है. तो इसलिए एक तो ये बहुत अच्छा डिस्क्लोजर है कि I should not do mistakes. So how do I handle others' mistake by not? And दूसरा, finishing the effect of others' mistake. Past mistake का भी impact हमको कम करना है. कभी कभी हम past उसने ऐसा किया, कल किया, और उसकी impression को लेकर हम बहुत अंदर ही अंदर घुटते रहते. एक और फिर हम कहते हैं मैं चुप बैठी, मैंने बहुत सहन किया, बिकॉज मैंने कुछ बोला नहीं. अंदर अगर वही सिचुएशन का इंप्रेशन लेके बैठे हैं, means I'm bound to do the next mistake because I'm holding the mistakes here. It's like if I've colored here green, I've colored the eyes green, or I've worn the green chashma, तो मुझे क्या दिखेगा? Unaware. और मेरे लिए वो नेचुरल होगा, ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा है. तो आई एम होल्डिंग द person's mistake here, means मतलब मुझे दिखेगा. इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था. One sister had come to Dadi, the chief of organization. So, and she went on saying something wrong. It was all her injury. No, that outburst about some situation, and she went on accusing Dadi ki it is because of you are being so partiality, this and that. Bola, Dadi एकदम चुप. And then she, while going, Dadi gave apple to her and said, and gave a very good silent drishti. So the other sister who was sitting beside, when she left, asked Dadi, why didn't you say anything? Dadi ने बोला, मैंने देखा मेरा अकाउंट इतना क्लियर हो गया. आई एम वेरी हैप्पी. इतना रिवेंज, इतना एंगर मैंने दिया था, वो मुझे मिल गया. अकाउंट सेटल्ड. सो कैन वी डू दैट? What will happen? I won't create a new mistake. वो कर रहा है, मेरे अकाउंट सेटल हो गए. This is what we learned. So I'm sure all of us agree. And the last one is, so how to accept people's mistake? Because we just have to understand that हमारा कार्मिक अकाउंट है या उसका कोई पेन है, because of which he is doing the mistake. तो अंदर कोई भी मिस्टेक
को वैसा का वैसा नहीं रखना है। नेगेटिव को चुप बैठ दिया डजंट मीन कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। मैं कहते मैंने जहर पी लिया। व्हाट इज दिस? द स्टेटमेंट इटसेल्फ क्या बोलता है? मैंने तो पॉइजन पी लिया। मतलब मैंने अंदर जहर रख दिया। इट मीन्स नाउ माई एवरी थॉट, वर्ड, द वे आई सी, जहरी जहर से भरे होंगे। सो एक ने मुझे कुछ सुनाया जहर जैसा, मैंने उसको स्प्रेड कर दिया। इधर पहले स्प्रेड किया, फिर बाहर स्प्रेड किया। इसलिए बाबा सेज वेरी ब्यूटीफुल थिंग, समा नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके समा। जस्ट लाइक आई अभी दादी का एग्जांपल दिया कि मेरा अकाउंट सेटल हुआ, उसने कुछ कहा, नॉट कि उसने कुछ कहा, ये मत सेटल। सो चेंज इट इनटू अ पॉजिटिव एंड देन let it go inside. This is called dealing with others' mistake. What will happen then? I'm always filled with positive. वृक्ष को आप पत्थर फेंकते हो, वो क्या देता है? फ्रूट देता है। वो पत्थर क्यों नहीं देता है वापस? उसके पास फ्रूट है, फ्रूट देगा। दूध को कितना भी, उस बॉटल को स्क्वीज करो, कितना भी स्क्वीज करो, वो देगा क्या? जो उसके अंदर है। तो जो मेरे अंदर होगा जहर, तो क्या देंगे हम? तो अगर मैंने अंदर जब समाया तब पॉजिटिव करके समाया, तो मैं दूंगी क्या दूसरे को? दिस इज टू डील विद द मिस्टेक्स। इजी, ये तरीके यूजफुल है कॉर्पोरेट, बिकॉज वी आर ऑलवेज amidst mistakes. No one is perfect. So we really need the art of dealing with it. Okay, so now we can start with the question answer. Okay, no questions? अच्छा, किसी को डीलिंग में सब मास्टर है, इजीली डील कर सकते हैं, क्रोध नहीं आता है? नो क्वेश्चंस? अनुष्का बन, यू कैन आस्क. Yeah, Didi, I've put a question in the chat. How can we effectively communicate with others who have made a mistake without any hurt or conflict? So this is what we have to do. Ki, effectively communication means I'm not getting affected. Because अगर उसका बुखार मुझे लग गया, I will not be able to help that person or guide them how to get out of that fever. So first of all, I should not be affected. Secondly, I need to have a tool just now which we discussed. Immediately उसको पॉजिटिव में चेंज करें, और फिर अब उसको मुझे बताना है मिस्टेक है, तो पहले तो मुझे मेरा हर्ट को मैं डील करूं व्हेन आई नो ही इज 100% रॉन्ग. क्योंकि अगर जब हम कोई गलती करता है, क्या है तुमको, क्या है तुम बार बार करते रहते हो, वो गलती कर रहा है, मैं जितनी बार तंग आ रही हूं, मैं अफेक्ट हो रही हूं उसकी गलती से. सो इवन दिस स्लाइटेस्ट voice, slightest thought means I'm not able to deal with it. So first of all, I won't get hurt. I understand, and now the psychology which I have to do here, I understand the soul is in pain. Injury में है कुछ न कुछ. और तीसरा, I understand कुछ मेरा karmic account है. Some of the other thing I can apply. So therefore, these things when I have in mind, मैं फिर affect नहीं होती.
और जब इफेक्ट नहीं होती हूँ, अब मुझे उसको बताना, गलती बताना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम इफेक्ट नहीं होने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, बट दैट डजंट मीन कि आई विल नेवर टेल देम, बट द वे ऑफ टेलिंग without my getting affected will be very cordial and very effective. फिर हम बताएंगे कि देखो, वी ऑलवेज से कि कभी भी इंजेक्शन लगाना होता है तो क्या करते पहले, उसको पहले अल्कोहल से रब करते, फिर उसके बाद फिर इंजेक्शन लगाते, सो दैट उसका प्रिक फील ना हो। इसी तरह किसी को बताना भी है, आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट दैट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट गेटिंग हर्ट, ये पूरा मेंटल एक्सरसाइज आई हैव टू डू। एंड नाउ कि देखो, यू हैव दिस स्पेशलिटी, आप ना वेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग, व्हाट ऑल जेन्यून उसकी स्पेशलिटीज है, नॉट फ्लैटरिंग, यू रियली यू आर ऑलवेज ऑन टाइम, यू आर रियली वेरी पेशेंट, व्हाट ऑल एक भी है, नो प्रॉब्लम, ज्यादा नहीं है, जो भी स्पेशलिटी वो सामने उसको वर्णन करो। एंड देयर आफ्टर, मतलब आपने उसकी जगह को सुन कर दिया कि आप में ये भी है, ये भी है, आप कितना अच्छा बोलते हो, आप कितने सिंसियर हो, अब थोड़ा ये भी चेंज कर लो तो, ये और स्पेशलिटी आप ऐड करो तो, ऑफ बीइंग पेशेंट, ऑफ नॉट गेटिंग एंग्री, व्हाट विल हैपन, डू यू फील देयर वुड बी डिफरेंस इन द वे ऑफ एक्सेप्टेंस? होगा डिफरेंट, क्योंकि अब आपने जब बोल दिया उसको उसकी स्पेशलिटी, तो अब वो जैसे उसको इंजेक्शन लेना संभालना इजी हो गया। नहीं तो उसको डायरेक्ट आपको अच्छा नहीं लगा और बोल देते हो, तो वन इज इधर इफेक्ट हो गया, दूसरा उसको इमीडिएटली उसको बोल दिया वही एनर्जी से, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट उसको प्रिक कर रहे हो, वो बहुत हर्ट होता है। एंड देयरफॉर उसका फोकस उसकी मिस्टेक पर नहीं होता है, अपनी हमारी मिस्टेक पे होता है, तुम कौन से अच्छे हो, और फिर हमको और हर्ट होता है कि ये सुनने के लिए मैंने थोड़ी किया, तुम इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। सो दिस इज हाउ द विशियस साइकिल गोज ऑन। तो इसलिए एक तो दिस इज हाउ यू कैन इफेक्ट, ऑलवेज स्पीक द पॉजिटिव ऑफ द सोल फर्स्ट, देन टेल देम देयर नेगेटिव। डायरेक्ट बोलना मतलब ही उसको ट्रिक ट्रिक करना, छुरी मार, एनेस्थेशिया देकर ही इलाज करते हैं, अल्कोहल देके इंजेक्शन लगाते, स्पिरिचुअलिटी इज द अल्कोहल। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ टू एब्सॉर्ब नेगेटिव फीडबैक और कंप्लेन्स अबाउट वन सेल्फ। यस, एब्सॉर्ब, तो हम एब्सॉर्ब करेंगे, ऐसा ही सेड कि जो भी आता है मुझे बाहर से वैसे के वैसे मैं अंदर ले जाऊं। सपोज आई एम नॉट गुड एट सम पर्टिकुलर थिंग, और वो दूसरा मेरा कलीग बहुत अच्छा है, और मुझे किसी ने कह दिया तुम बिल्कुल, तुमको तो कुछ आता ही नहीं है। अब अगर मैंने वैसा का वैसा एब्जॉर्ब कर लिया तो मैं अपने आप को ऑलवेज डाउन फील करूंगी, सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ एस्टीम फील करूंगी। बट उसने कहा एंड आई रियली फील कि हाँ ये बात मेरे में, नाउ एट दैट टाइम आई नीड टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट माई सेल्फ, कि चलो उसने कहा है, उसने रियली नेगेटिव टॉन्ट दे के बोला, सबके सामने कहा, फाइन, बट व्हेन आई विल टेक इट आई विल अंडरस्टैंड, यस, समवेयर इफ आई कैन बी कूल, बिकॉज मुझे एक फॉर्मूला लाइफ में रखना है कि कोई भी नेगेटिव को
अंदर लेने के लिए पॉजिटिव में चेंज करके लेना। एज इट इज लेंगे तो उसका असर बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि वहां की तो बहुत पावरफुल नेगेटिव एनर्जी है। तो उस समय आई हैव टू जस्ट थिंक, ओके ये मेरी मिस्टेक है, आई हैव टू बी पावरफुल इनफ टू टेक अ नेगेटिव फीडबैक। मतलब मुझे चेंज करना है। इट्स गुड कि देखो उन्होंने मुझे बताया, अच्छा है 4 लोगों के सामने ही बताया, बताते ही नहीं है तो पता नहीं मैं कितना और करता रह। सो व्हेन आई हैव दैट एनर्जी और दैट करेज कि ओके मुझे चेंज करना, देन इवन इफ इट इज नेगेटिव आई विल अंडरस्टैंड इट एंड अंडरस्टैंड उतना करो जितना एक्चुअल मेरा है। कभी कभी समवन वुड जस्ट गो ऑन मैग्नीफाइंग माई मिस्टेक। मुझे इतना सा काम नहीं आया, इतनी एक ही बार मैं लेट हुई, 2 बार मैं लेट हुई, वो कहते हैं तुम तो कभी टाइम पे नहीं आते। उसने मेरा मैग्नीफाई किया। अब इसमें मेरी मिस्टेक कितनी है? 30 दिन की नहीं है, 2 दिन की है। तो मुझे वाई शुड आई टेक द 28 डेज का फीडबैक? दैट इज हिज एंगर। मेरी मिस्टेक कितनी है? 2 दिन की। तो मुझे 2 दिन को चेंज करना है। वो एंगर आई डोंट एक्सेप्ट। उसका हम कहते हैं क्या है तुमको कुछ जो मैं अच्छा करता हूँ वो दिखता नहीं है, इतनी से मैंने कर ली योर। सो नाउ आई गो ऑन बिकॉज आई एम नॉट कन्वर्टेड हियर, सो आई गो ऑन। एक तो उसको एक्यूज करूंगी, अपने आप को डिफेंड करती जाऊंगी, एंड डिफेंडिंग माई सेल्फ मीन्स स्प्रेडिंग हिज मिस्टेक टू अदर्स। ये तो ना बहुत ऐसे है, क्योंकि उसने मेरी एक मिस्टेक दी, मैं उसकी 4 मिस्टेक दूसरों को बताऊंगी। सो नेगेटिव फीडबैक मतलब ही, एंड दिस मैं 4 बताऊंगी इसका मतलब मैंने 4 रॉन्ग एनर्जी उसको और डाल दी। he will become more negative towards me because I am the reason for that 4 energy, for the people's others negative energy। तो मेरा कर्म ज्यादा स्ट्रांग हो गया उसके साथ। इन सब का भी रीजन मैं। फिर मैं कहती हूँ ये, वो डॉटर इन लॉ कहती है ये तो बहुत ही और ही ज्यादा नेगेटिव हो गई, क्योंकि इस डॉटर इन लॉ ने मदर को, फादर को, सिस्टर इन लॉ को, सबको स्प्रेड किया, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I don't absorb. First, I'll be very clear. I don't absorb उसका, चेंज करूं वहां, और फिर जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है उतना मुझे ठीक करना है। रेस्ट उसका इंजरी है, इट्स ओके, आई विल ट्राई टू हेल्प कर। सो 28 डेज का जो उसने कहा वो उसकी प्रॉब्लम। 2 डेज मैंने था, दिस इज जेन्युइन। कैन वी चेंज आवर सेल्फ इन दैट? नहीं तो अगर हम नेगेटिव ले लेंगे ना, हम चेंज नहीं कर पाएंगे, बट विल गो, विल मेक आवर सेल्फ एस्टीम लोअर, एंड दिस चेंज। बोला अच्छा हुआ तुमने ऐसे बता दिया, आई विल सर्टेनली डू इट। स्पीकिंग clearly about accepting our acceptance of the mistake is a very courageous way of stopping his negativity towards me। नहीं तो वो उसको लगता है अच्छा इतना बोला, और उसको अपोलॉजिज भी नहीं करता, सॉरी भी नहीं बोलता, इतनी बड़ी मिस्टेक करी। सो इफ आई कैन टेल विद दैट फीलिंग, यस ये मेरी थी मिस्टेक, आई सर्टनली वर्क अपॉन इट, इट्स अ वेरी करेजियस स्टेप। उसका आधा एंगर तो कम हो जाएगा।
How many of us have experience in road rage? आपने गलती भी की, हिट भी किया, आपकी गाड़ी आपने खड़ी कर दी क्योंकि आपने मिस्टेक की, और फिर आप बाहर निकल के उसको सॉरी भी बोलो. You feel the impact this way, the impact and the other response कि आप जस्ट चले गए देख के, कौन सा ज्यादा इजी होता है डील करना? कौन सा ज्यादा? ए, टू स्टॉप द कार and then doing it, or to just go away. हमेशा उसका फर्क पड़ता है. People will let go. बड़ी बड़ी बातें भी आती. What if in spite of apologizing multiple times other person is not accepting? It's fine. Our aim is not what others should do. Our aim is that I want to make my conscience clear. उसके अंदर acceptance नहीं है, वो उसकी problem है. But I'll still continue to be that powerful, good enough. मैंने मिस्टेक किया, मैं एक्सेप्ट करूं. वो मुझे फिर भी एक्यूज कर रहा है. हम कहते हैं मैंने एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना, रोज सुनने से अब तो मैंने बोलने लगा. पहले मैं बोलता नहीं था, अब मैंने बोलना शुरू कर दिया. एक्चुअली क्या हुआ, जो 9 दिन हम सुन भी रहे थे ना, उस समय सुन नहीं रहे थे, उस समय अंदर ही अंदर क्रिएट कर रहे थे. कई बार हमने एग्जाम्पल दिया है कि दूध को आपने जैसे ही हाई किया, वाटर को बंद था, हाई कर चालू करते ही वो उबलने लगा. व्हाट डज इट मीन? इट वॉज ऑलरेडी हीटेड, तभी तो उबलने लगा. ये 10th डे आप बर्स्ट कैसे हुए? मतलब 9 days तक अंदर अंदर गुस्सा कर रहे थे. तो अगर मल्टीपल टाइम्स मेरे एपोलॉजी करने के बाद भी वो नहीं मान रहा है, तो उस एपोलॉजी में भी मेरा क्रोध चल रहा है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि ही शुड चेंज बिकॉज आई हैव अपोलोजाइज्ड. सो आई एम क्रिएटिंग एंगर और हर्ट और नेगेटिविटी. इसलिए क्या हो रहा है, 10th टाइम अब मुझे कुछ असर ही नहीं पड़ता, मैं फिर वो मिस्टेक कर देता हूं, क्योंकि मैं कहती हूं मैंने देख लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तुम, मैं इतना अच्छा से बोल रही थी, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता है. सो आई विल डू द सेम. सो whilst speaking, whilst apologizing, I was expecting, I was creating that expectation, energy, anger, etc. इसलिए 9 बार तक मैंने ट्राई किया, 10वीं बार मैं फिर वैसे हो. तो when I really apologize without that energy, it will 100% hit that soul. चाहे वो बोले नहीं, कहीं ना कहीं उसको फील होता है. और फिर भी मुझे उसको फील होने के लिए नहीं है, मुझे एकदम क्लियर करना है. एंड देन आई एम एपोलोजाइजिंग, मतलब ही आई डोंट वांट टू डू इट अगेन. ये नहीं सॉरी सॉरी प्लीज, अच्छा सॉरी सॉरी, ये सॉरी नहीं होता. मुझे रियली नहीं करना, फिर उसकी प्रॉब्लम है. द बॉल इज इन हर कोर्ट, हिज और हर. वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम. बट देन आई वोंट लीव माई गुडनेस, बिकॉज वो तो पहले भी वैसे है, मेरे सॉरी बोलने के बाद भी वैसे है. इससे तो अच्छा है मैं वैसे ही रह जाऊं. तो इसलिए हम मिस्टेक करते जाते हैं जब दूसरा मिस्टेक करता है. दिस इज हाउ सतयुग से कलयुग होगा ना. वेरी गुड क्वेश्चंस, वेरी प्रैक्टिकल. एनी मोर?
अच्छा, तो हम क्या करेंगे पूरे दिन? फाइनली होमवर्क लेके जाए कि आगे से कोई भी मिस्टेक करता है, वी रियली शुड वर्क ऑन दिस as a personality, not creating new mistake and others mistake को क्लियरली समझना है, मेरा कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है, ये दोनों जरूर समझना है। पॉसिबल? इज इट ओके? ये कर सकते हैं? ये लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत अच्छा नॉलेज है। इनफैक्ट यू ऑल कैन राइट ऑल्सो इफ यू, बिकॉज वी टेंड टू फॉरगेट दिस। ओके, so this is called dealing with others' mistakes. So very happy that all would, how many of us really feel that I'll really work on this? हम really एक example बन जाएंगे दूसरे के लिए। Okay, so next, in fact, next is a new one, new month. So we'll be having the session on the month on addiction. It could be any addiction, and for that there will be an addiction expert, Dr. Sachin Param, who is our dealing completely with addictions. Especially is accepted our invitation. He'll be there. So I want all of them, the whole Jindal family. Okay. So we'll just have 1 minute silence and commit to Baba. Okay, from today, I will lead a mistake-free life by taking that energy from him and reminding myself of this wisdom always. अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट समझते हैं। I, the point of light, very pure soul. Getting the energy from the Supreme, as has been shown in the picture. My mind is energizing. मेरा मन पूरा चार्ज हो रहा है। मैं शक्तिशाली बन गई। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करके अब मैं रेडी हूँ कोई भी नेगेटिव एनर्जी को डील कर, क्योंकि मेरे पास हथियार आ गए, द स्वॉर्ड ऑफ पॉजिटिविटी, कंप्लीट प्योर पॉजिटिव। इसी तरीके से पूरी लाइफ टिक करें। ओम शांति। Thank you for the session, Didi. And thank you everyone for joining. So we will have a new topic the next week, which Didi has already told, and we are also going to have a new speaker. So hope that everybody joins. Let us meet the next week. Have a nice day. Thank you. Om Shanti.